Hello, class 7. Today we are going to start our new chapter, a new lesson, lesson 11, auxiliaries and models. Auxiliaries and models, as you know that the helping verbs are also called the auxiliaries. Okay, so let's see the definition of auxiliary or models. Those helping verbs which express the mode or manner of the action denoted by the verbs are called models or model auxiliaries. Okay, वो helping verbs, those helping verbs, okay, which express the mode or manner of the action denoted by the verb. Means action के verb के through जो action बताया जाता है, ठीक है, उसके मैनर और मोड को, उसके मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं आर कॉल्ड मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरीज, उन्हें हम मॉडल या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं. सो this thing is clear to us that what are model and model auxiliaries. ठीक है, वो helping verbs जो कि action के verb के मीन्स वर्ब जो एक्शन डिनोट करता है, मीन्स जिस एक्शन के बारे में बताता है उसे उसके मैनर को बताने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, जिन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उन्हें हम मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं. देयर आर 13 models in numbers. Models are 13 in numbers here. The first one is may, second might, third can, fourth could, fifth will, sixth would, seventh shall, eighth should, ninth needn't, 10th dare, 11th must, 12th ought to, and 13th one is used to. So these are the 13 auxiliaries or models. So let's start reading these. Let's know about all these models and auxiliaries. The first one is will. Now let's see that where we use will. Will का use हम कहाँ पे करते हैं. So here are some of the points about will, that where we use will auxiliary. Okay. The first is A1. In the sentence below, will helps in the formation of future tense. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है. हियर इज एन एग्जाम्पल दैट माई ब्रदर विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो. ठीक है, एज इट इज रिटन ओवर हियर इन द सेंटेंस बिलो, विल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. विल का यूज हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं. जब भी कभी फ्यूचर टेंस की बात की जाती है तो हम विल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो. मेरा भाई दिल्ली के लिए निकलेगा, मीन्स जाएगा. ठीक है. So here will is being used because we are talking about the future tense. ठीक है, means कल की बात की जा रही है. The work is not done. It is still not completed. So we are talking about the future tense. That's why we are using will over here. Okay. Next, B point is will is used to express willingness. willingness को express करने के लिए हम will का use करते हैं. Means willingness means होता है जैसे चाह. ठीक है. एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू एज फार एज आई कैन. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जितना कि मैं मुझसे हो सकेगा. एज फार एज आई कैन. विल इज ऑल्सो written over here because we are talking about the future tense as well as willingness is being shown with this sentence. Next, will is used to express polite request. कोई politely अगर request किसी को करता है, means किसी को रिक्वेस्ट करता है तो हम उसके लिए विल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज क्लोज द डोर. सो हियर इफ समवन इज सेइंग टू एनीवन दैट will you please close the door, it means requesting he is requesting politely to close the door. So here we can use will. Next is D1. Will is used to express intention or promise. किसी भी तरह की इंटेंशन जो आपके माइंड में जैसे जो भी चल रहा है, ठीक है, उसे उसे बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. और द प्रॉमिस, if we have to express the intention or promise, then also we use will in the sentence. Like, for example, I will come as soon as I am well. Okay, as soon as I am well. Here
प्रॉमिस किया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं आ जाऊंगा. नेक्स्ट, आई विल नॉट स्पीक मोर देन हाफ एन आवर. हियर इंटेंशन इज बीइंग expressed that आई विल नॉट स्पीक मोर देन हाफ एन आवर मीन्स मेरी ये इंटेंशन है कि मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं बोलूँगा या बोलूँगी. ओके, नाउ सी, नेक्स्ट वन इज इवन. विल इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मीन्स होता है इच्छा शक्ति, ठीक है. फर्म डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है. तो जब भी कोई डिटर्मिनेशन होती है तो इसके लिए हम विल का यूज करते हैं. लाइक वी विल फाइट टू द फिनिश मीन्स हम अंत तक लड़ेंगे. ओके, वी विल रूट आउट करप्शन, हम करप्शन को जड़ से मिटाएंगे, खत्म करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज फोर F1. विल एक्सप्रेसेस प्रिडिक्शन. इफ यू स्टेप ऑन अ स्नेक इट विल बाइट यू. अगर तुम, अगर ऐसा कि कुछ सपोज करके चलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा. सो इफ यू स्टेप ऑन अ स्नेक इट विल बाइट यू. इसमें इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि अगर अगर तुम स्नेक पे पैर रखते हो तो इट विल बाइट यू, वो तुम्हें काट लेगा. ओके, हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग विल. नेक्स्ट, ही विल नेवर टेल अ लाई. वो कभी झूठ नहीं बोलेगा. सो with these all these steps means all these points we come to know that where we use will auxiliary. ठीक है. First, will is will helps in the formation of future tense. फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में विल का यूज किया जाता है. सेकंड, टू एक्सप्रेस द विलिंगनेस, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. इंटेंशन और प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड द लास्ट वन इज प्रिडिक्शन. इन सारे इन सभी के लिए हम विल का यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज शैल. दैट वेयर वी यूज शैल, हम शैल का यूज कहाँ पे करते हैं. शैल इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और वी. जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है आई या फिर वी होता है, इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी देन एंड वी हैव टू, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. वी शैल लीव फॉर शिमला ऑन संडे. वी शैल लीव फॉर शिमला ऑन संडे. यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है एंड द सब्जेक्ट इज वी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शैल विद इट. दैट वी शैल लीव फॉर शिमला ऑन संडे, हम शिमला के लिए संडे को निकलेंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज बी पॉइंट इज शैल इज यूज टू एक्सप्रेस ए थ्रेट और अ कमांड. किसी भी तरह की कमांड के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो. हियर ऑल्सो कमांड इज बीइंग गिवन, ठीक है, कोई कमांड दिया जा रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग शैल विद इट. दे शैल सफर फॉर दिस थ्रेट, फॉर दिस. ये एक थ्रेट है, जैसे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके लिए सफर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज शैल व्हेन यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आई और वी, विथ आई और वी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड ऑन ऑफर सजेशन. ठीक है. सो शैल का यूज जब हम क्वेश्चन में करते हैं आई और वी के साथ, तो हम किसी ऑफर या फिर सजेशन के लिए हम शैल का यूज करते हैं. लाइक शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. यहाँ पे कोई ऑफर दिया जा रहा है किसी को कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप, एक कप कॉफी बनाऊं, प्रिपेयर करूं. सो हियर यहाँ पे सजेशन लिया जा रहा है कि अगर वो चाहे तो कॉफी बनाई जाए. ओके. नेक्स्ट, शैल आई ड्रॉप यू टू द कॉलेज. हियर सजेशन इज बीइंग गिवन, सजेशन ली जा रही है, मीन्स दिया जा रहा है कि शैल आई ड्रॉप यू एट द कॉलेज, कि क्या मैं तुम्हें कॉलेज पे ड्रॉप कर दूं. ओके. सो हियर वी कम टू नो अबाउट द अबाउट शैल. शैल इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और वी. जब हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी होता है और फ्यूचर टेंस की बात हो रही होती है तो हम वे आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं. नेक्स्ट, शैल इज यूज टू एक्सप्रेस थ्रेट और कमांड. किसी थ्रेट या फिर कमांड के लिए हम शैल का यूज करते हैं. एंड ऑल्सो वी व्हेन यूज इट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जब हम यूज करते हैं विथ आई और वी, it expressed the offer suggestion. So this was all about shall. Now let's come on can. The next one is can.
कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। कैन का यूज हम किसी की एबिलिटी, किसी की क्षमता जानने के लिए करते हैं। हियर इन द एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। ठीक है, वो 4 लैंग्वेजेस, 4 भाषाएं बोल सकता है। सो हियर वी कम टू नो दैट ये उसकी एबिलिटी की बात हो रही है कि वो कितना कर सकता है, मीन्स वो 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ओके, नेक्स्ट B1 इज कैन इज यूज टू टेक परमिशन। कैन का यूज हम करते हैं किसी की परमिशन लेने के लिए। कैन का यूज हम करते हैं। कैन, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो नाउ। ओके, here permission is being asked. We are if we are asking for permission, then we use can I go now. नेक्स्ट, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि मीन्स ऐसा हो सकता है, देन ऑल्सो वी यूज कैन। लाइक एग्जाम्पल, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, मीन्स गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। सो मीन्स गलतियों की पॉसिबिलिटी है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, एनी वन। नेक्स्ट, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनी वन। एक्सीडेंट्स भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, घटनाएं। ठीक है, सो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक परमिशन एंड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मे। मे एक्सप्रेसेस परमिशन। मे परमिशन एक्सप्रेस करता है। मे इज मोर फॉर्मल देन कैन। मे जो है, मे का यूज हम कैन से ज्यादा करते हैं, ज्यादातर, मीन्स मेनली वी यूज मे। Next, let's see the example. You may collect your notebooks. It is permission given. If someone is saying, may you, in the sentence, may you collect your notebooks, through this sentence, we come to know that someone is giving permission to someone. Okay? कोई किसी को परमिशन दे रहा है कि तुम अपनी बुक्स को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मे आई बोरो योर कार। हियर परमिशन इज बीइंग टेकन। परमिशन लिया जा रहा है कि मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट, मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। मे भी पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करता है, मीन्स संभावना। ओके, एग्जाम्पल, इट मे रेन दिस इवनिंग, मीन्स बारिश हो सकती है इस शाम को। सो हियर मीन्स बारिश की संभावना है, बारिश की पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मे विद इट। नेक्स्ट, ही मे गेट अ गुड जॉब। ही मे गेट अ गुड जॉब, ठीक है, उसे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट, मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, मे ही लिव लॉन्ग। लाइक मे का यूज हम इसलिए भी करते हैं जब भी कोई विश होती है, तो हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे शी हैव गुड हेल्थ। मे शी हैव गुड हेल्थ। ओके, सो हियर वी हैव यूज्ड मे। सो मे इज यूज्ड विथ may is used to express permission, to give and take permission we use may का यूज हम परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और किसी चीज की अगर पॉसिबिलिटी है, मीन संभावना है, तब भी हम मे का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश। किसी भी विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। लाइक मे गॉड ब्लेस यू, may he live long, like this. Next, now let's come on our next model. Fifth one is would. We use, where we use would, हम would का use कहाँ पे करते हैं? Now let's see. Would is used in the past tense of will or shall in direct speech. would का use हम past tense में करते हैं will के लिए। will के लिए indirect speech में हम would का use करते हैं। Like in the example here it is given. Direct speech, he said I will look into the matter. Here डायरेक्ट स्पीच है आपका, और डायरेक्ट स्पीच में will दिया गया है इन द रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में will राइट किया गया है। सो while changing it into the indirect speech, we will write over here that he said that, कॉमा को रिमूव करके that लिख देंगे, that he would look into the matter, only this
we will change it. Next, would is used to express a habitual activity in the past. कोई भी habitual activity है और वो past की बात है, मीन्स बीती हुई बात है और वो habitual activity थी, ठीक है. So then also we use would. Once every week he would go for a swim in the sea. मीन्स वो हफ्ते में एक बार जरूर स्विमिंग के लिए जाता है. ओके, जाता था. ओके. नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग गांधी जी वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक. हर सुबह गांधी जी एक वॉक पे जाते थे. नेक्स्ट, वुड विथ रैदर इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेफरेंस. वुड का यूज जब भी हम रैदर के लिए करते हैं, जब भी हम रैदर के साथ वुड का यूज करते हैं, देन इट इज शोन दैट एनी वी आर टॉकिंग अबाउट एनी विश और अ प्रेफरेंस, किसी की प्रेफरेंस के बारे में बात की जा रही है. लाइक द एग्जाम्पल, आई वुड रैदर स्टार्व देन बेग. ओके, वो मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं भीख मांगने के बल मीन्स भीख मांगने से बेहतर है कि मैं भूखा रहूं. ओके. सो ऑल दिस वर द यूज ऑफ वुड. वुड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच इन द प्लेस ऑफ विल. ओके, विल की जगह पे हम वुड का यूज करते हैं इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट है आपका any habitual activity. If there is any habitual activity in the past, then also we use would. The third one is would with rather is used to express a wish or preference. would rather के साथ जब भी यूज होता है तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, किसी भी प्रकार की विश, मीन्स विश को एक्सप्रेस करता है. सो सी द एग्जाम्पल, आई वुड रैदर स्टार्व देन बेग. इसमें ये बताया गया है कि मैं भीख मांगने से बेहतर है कि मैं भूखा ही रह जाऊंगा. सो ऑल दीज वर अबाउट वुड. नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, शुड का यूज हम कहाँ पे करते हैं. शुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में हम शैल के जगह पे शुड का यूज करते हैं while we are changing the direct speech into the indirect speech. If in the reported speech will is given, sorry, shall is given, then we write over there should while changing it into the indirect speech. So let's see the example. Direct speech is, he said the workers shall report for duty on Monday. So while changing it into the indirect speech, he said that the workers should report for duty on Monday. Okay. Next, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एडवाइस. कि भी किसी भी तरह की अगर एडवाइस है तो उसके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. लाइक यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज. तुम्हें रोज़ाना एक्सरसाइज लेनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज द सी पॉइंट इज शुड इज यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी. किसी तरह की लॉजिकल नेसेसिटी है, मीन्स ज़रूरत है, तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं. लाइक देयर शुड बी, दे शुड बी होम बाई नाउ, मीन्स अब तक उन्हें घर पे होना चाहिए. सो हियर वी आर यूजिंग शुड विद इट. So finally, we come to know that where we use should is used in the past tense of shall in indirect speech. Indirect speech की past tense में हम shall का use should का use करते हैं shall की जगह पे. Next, in direct speech and indirect speech में मैंने आपको बताया अभी, ठीक है. नेक्स्ट आपका है शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एन एडवाइस. एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं. एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस द लॉजिकल नेसेसिटी. कोई लॉजिकल नेसेसिटी है, जरूरत है, देन वी यूज शुड in that sentence. So all these were about the six modal and auxiliaries. First we have read will हमने पढ़ा था. Next was shall. Third one can. Fourth one may. And fifth one is would. And the sixth one is should. So we have read about all these and we will continue it in our next video.